Hello everyone, welcome in this lecture. Students, today we will discuss numerical analysis and the last topic Malus law. हमने previous lecture में study किया था Polaroids को and we have studied about the uses of Polaroids. एक use side मैंने discuss किया है या नहीं वो discuss कर लेते हैं. Identification of light. The light is polarized, unpolarized or partially polarized. It is determined with the help of the Polaroid. तो Polaroid की help से हम ये identify कर सकते हैं a light is polarized or unpolarized or partially polarized. Identification of light ये आपका प्रैक्टिकल भी है, लैब में आप परफॉर्म करेंगे. वहां पोलराइजर होगा आपके पास और एक एनालाइजर होगा. तो पोलराइज अगर लाइट पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड लाइट, इफ light is completely plane polarized, then on rotating the Polaroid, there is no change in the intensity of emerged light from Polaroid. अगर लाइट completely plane polarized है, if the light is completely polarized, then on rotating the Polaroid को rotate करने पर there is no change in the intensity of emergent light. तो light emerged out हो रही होगी, there is no change in the intensity of emerged light from the Polaroid. जो light emerge out हो रही है Polaroid से, उसकी इंटेंसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आता है Polaroid के रोटेट करने पर, तो जो हमारी लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही थी वो कैसी है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है. अनपोलराइज्ड, sorry, if light is completely no change, if light is completely plane polarized, then on rotating the Polaroid there is on rotating the polarized, sorry ये डेफिनेशन गलत लिख दी मैंने, ये अनपोलराइज्ड लाइट की है बेसिकली. Unpolarized light, if the light is unpolarized, then on rotating the Polaroid there is no change in the intensity of emerged light from the Polaroid. If there is no change in the intensity of the emerged light from the Polaroid on rotating the Polaroid, then the light is said to be unpolarized light. And if कोई change नहीं आ रहा है, if the light becomes twice minimum and twice maximum, दो बार मिनिमम हो जाती है इंटेंसिटी ऑफ द इमर्ज्ड आउट लाइट और दो बार मैक्सिमम हो जाती है, तो ऐसी लाइट होती है हमारी पोलराइज्ड लाइट. कौन सी होती है वो? पोलराइज्ड लाइट. पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड. If on rotating the polarizer, the intensity of emerged light
If on rotating the polarizer the intensity of emerged light becomes twice minimum and twice maximum, if on rotating the polarizer the intensity of emerged light becomes twice minimum and twice maximum, then the light is said to be plane polarized. तब लाइट हमारी क्या है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। ये तो समझ में आई। पार्शियली पोलराइज्ड क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी वेरी तो करे, चेंज तो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि दो बार तो जीरो हो जाए, दो बार क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चेंज तो होगी, वेरी तो होगी, इट मींस एकदम डार्क नहीं होगा और एकदम ब्राइटनेस नहीं शो होगी। तो ऐसी जो लाइट है जो पोलराइजर पे इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट कैसी होगी, पार्शियली पोलराइज्ड। तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होगी, पार्शियली पोलराइज्ड, इसी क्या कंडीशन है, इफ ऑन रोटेटिंग polaroid the intensity of emerged light, the intensity of emerged light varies but do not varies but do not becomes maximum and minimum, मीन्स जीरो नहीं होगी और हाई इंटेंसिटी नहीं होगी, इंटेंसिटी वेरी तो करती है। देन द लाइट इज सेड टू बी पार्शियली पोलराइज्ड, देन द लाइट इज said to be partially polarized. ओके, तो ये तीन तरह की लाइट होगी जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पोलराइजर। पोलराइजर की हेल्प से या पोलराइड की हेल्प से हम लाइट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दो सिचुएशंस सब आप ध्यान रखेंगे पोलराइड्स के एनालाइजर की। क्या सिचुएशंस होती है, एक तो क्रॉस्ड पोजीशन होती है और एक पैरेलल पोजीशन होती है, क्रॉस्ड एंड पैरेलल। क्रॉस्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन होती है पैरेलल पोजीशन। इफ polarizer and analyzer are placed in such a way that the axis, that the optic axis of both are perpendicular to each other, then the arrangement is called crossed position। इसे कहते हैं क्रॉस्ड पोजीशन। तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, लाइक दिस वन। ये एक पोलराइजर शीट बना दी हमने और एक इस तरीके से बनाते हैं हम। एक ऑप्टिक एक्सिस तो ऐसे है, ये दूसरे ऑप्टिक एक्सिस हम ऐसे दिखा दें यहां, इस तरीके से ऑप्टिक एक्सिस है।
तो ये तो इसके ऑप्टिक एक्सिस ऐसे पैरेलल, ठीक है, और ये ऑप्टिक एक्सिस ऐसे हैं दूसरे के ऐसे। तो बेसिकली क्या रहा कि ये जो ऑप्टिक एक्सिस है ये वाला और ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा कितना है वो 90। तो एक को तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, दूसरे पे एक्सिस पर ऐसे दिखा दूंगा इस तरीके से, ठीक है, या इसको आपने ऐसे दिखाया है तो इसको ऐसे दिखाओ, तो हम इसको ऐसे ये वाला दिखाएंगे क्रॉस पोजीशन। तो डायग्राम से ही बनाते हैं, ठीक नहीं दिख रहा क्रॉस पोजीशन को, पर ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं है। ये दोनों एक एक्स एक्सिस बना लो और एक ऐसे एक वाई एक्सिस बन गया, ठीक है। एक तो यहाँ बना लो पोलराइजर आप इस एक्सिस पर, एक एक्सिस पर यहाँ बना लो, ये दोनों पोलराइजर है, सॉरी एक पोलराइजर एक एनालाइजर, ये पोलराइजर और ये एनालाइजर है। तो इसकी सिचुएशंस तो ये है ऐसे, एक्सिस है पहला एक्सिस और इसके पहला एक्सिस ये है। अगर इस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है तो यहाँ I/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो आई होगा आई डैश उसकी इंटेंसिटी क्या होगी 0 और थीटा क्या 90। ये है फर्स्ट पोजीशन, क्लियर। सेकंड होगी पैरेलल पोजीशन, जिसमें दोनों ही एक्सिस क्या होंगे सेम होंगे, दोनों के एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सेम का मतलब दोनों के ऑप्टिक एक्सिस, पोलराइजर और एनालाइजर, ये तो पोलराइजर है और ये क्या एनालाइजर, ये पोलराइजर एंड एनालाइजर, ठीक है। दोनों की जो एक्सिस है वो इस समय तो कैसे है परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, उस सिचुएशन में पैरेलल पोजीशन में क्या होंगे दोनों एक्सिस पैरेलल होंगे। तो दूसरी पोजीशन क्या होती है इसकी, तो एक तो क्रॉस पोजीशन हो गई और एक होती है पैरेलल पोजीशन। बोर्ड एग्जाम पूछा था छोटा सा क्वेश्चन कि क्रॉस पोजीशन और पैरेलल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इमर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, क्रॉस में तो 0 और जो पैरेलल पोजीशन है उसमें हो जाती है I0/2। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट I0 है इंसिडेंट लाइट की, पैरेलल पोजीशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर, द अरेंजमेंट polarizer and analyzer, the arrangement of polarizer and analyzer in which angle between optic axis, in which angle between optic axis of polarizer and analyzer is 0 degree, then this arrangement or such arrangement is known as parallel. ओके, अब डायग्राम बना लो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए, दोनों के एक्सिस पैरेलल बना दो। ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक पोलराइजर यहां बना देते हैं, एक पोलराइजर यहां बना देते हैं ऐसे, दोनों के ऑप्टिक एक्सिस है ये, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ बोथ, ठीक है। और ये पोलराइजर है, पोलराइजर वो होता है जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है और लाइट का पोलराइजेशन करता है, एनालाइजर जिससे हम लाइट को एनालाइज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लाइट की इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी हो, लाइट इंसिडेंट हुई आई इंटेंसिटी के साथ,
तो I0 के साथ, तो यहाँ I0/2 होगी, और जो इमर्ज आउट लाइट होगी यहाँ I डैश, वो भी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, I0/2। मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इमर्ज आउट लाइट की। ये होती है सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सिचुएशन समझ में आती है। अब डिस्कस करेंगे हम मैलस लॉ। किसको डिस्कस करेंगे, मैलस लॉ। मैलस साइंटिस्ट ने कहा, बताया था यहाँ, द इंटेंसिटी ऑफ द emerged light from the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of the angle between the optic axis of polarizer and analyzer. The intensity of Malus law. The intensity of emerged out light from analyzer is directly proportional to the cosine to the square of cosine of angle to the square of cosine of angle between optic axis of polarizer and analyzer, between optic axis of polarizer and analyzer, that is the intensity of emerged out light from analyzer is directly proportional to the square of cosine of angle between optic axis of polarizer and analyzer, that is I proportional to cos square theta. So it becomes I equal to I0/2 cos square theta, where theta is the angle between optic axis of polarizer and analyzer. Okay, and I0 intensity of incident light, ये इंटेंसिटी है किसकी, इंसिडेंट लाइट की। I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इस तरीके से मैलस ने अपना एक लॉ प्रपोज किया, उसके बेस पर उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ इमर्ज्ड आउट लाइट बताई जब लाइट हमारी इंसिडेंट होती है, किस पर, पोलराइजर पर और एनालाइजर पर। ध्यान यहाँ ये रखना है आपको कि जो लाइट इंसिडेंट होती है पोलराइजर पर, पोलराइजर से जब पास आउट हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाती है, जो कि ये रे I0/2, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे पोलराइजर पे, ये जैसे सपोज करिए पोलराइजर है और यहाँ कोई एनालाइजर है, इस तरीके से यहाँ I0 इंटेंसिटी है, तो यहाँ जो इंटेंसिटी ऑब्टेन होगी वो होगी I0/2। यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी इस पर I0/2 cos स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या होगा, थीटा है इन दोनों के ऑप्टिक एक्सिस के बीच का एंगल। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं, मैलस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। I0 intensity light incidents on polarizer if the angle between polarizer and analyzer is
60 degree. Then find out the intensity of emerged out light. ओके, सॉल्यूशन क्या बताया मैंने इसने, I इक्वल टू I0. देखो ये I0 लाइट की इंटेंसिटी है, किस पर इंसिडेंट हुई, पोलराइजर पर सब बाहर आई तो कितनी मिलेगी, I0/2 cos स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री. तो I कितना हो गया, I0/2 तो ये है cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो I हो गया I0/8. अब इससे कहा जाए कितना परसेंट लाइट हमारी इमेज आउट हुई है, तो जो I0 थी उसका 1/8 टाइम्स, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट इमर्ज्ड आउट इक्वल टू हो गया I0/8 अपॉन I0, दैट इज I0 कैंसिल 1/8 इंटू 100% निकालोगे आप तो कितना हो गया ये 1, 2 बचा 20, 8 to 16, 12.5%. ये इतनी बाहर जाएगी, बाकी सब खत्म. ठीक है, तो ये इतनी इंटेंसिटी है इमर्ज्ड में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इससे पहला सब बेस्ड. टू पोलराइड्स P1 and P2 are placed in such a way that their optic axes are perpendicular to each other if third polaroid P3 is placed in such a way that the optic axis of P3 is parallel to P1, then intensity varies. How intensity vary? Intensity of light emerged out from P2 varies on rotating P3. क्वेश्चन समझो पहले आप. दो पोलराइड्स हैं P1 और P2 और उनको कैसे प्लेस किया गया, परपेंडिकुलर ऑप्टिक एक्सिस उनकी इस तरीके से रखा गया है. तीसरा पोलराइड P3 इस तरीके से रखा जाता है कि उसका ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, उसका ऑप्टिक एक्सिस P1 के पैरेलल है. तो अगर P3 को रोटेट किया जाए तो P2 से जो पास होने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी करेगी. क्लियर है. तो पहली चीज तो देखो, यहाँ सिचुएशन को प्लॉट कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा समझ में भी आएगा हमें. ये मान लो ए का ऑप्टिक एक्सिस ऐसे बना लेते हैं. चलो, एक ऑप्टिक एक्सिस मान लीजिए हमने बना लिया P1 का ऑप्टिक एक्सिस. ये P1, ये P1 का ऑप्टिक एक्सिस हो गया. P1 का ऑप्टिक एक्सिस है. दूसरा हो गया P2 का. P2 का जस्ट इसके परपेंडिकुलर लेना है. तो देखो मैं P2 का ऐसे लेकर के जा रहा हूं. यहां
ये ऑप्टिक एक्सिस है किसका, P2 का। तो ये पोलराइज बना दो यहां पे भी, एक ही ऑप्टिक एक्सिस पोलराइजर एक को बना दिया। बेसिकली ये एनालाइजर है, ये तो हो गया P1 और ये हो गया P2। इन दोनों की ऑप्टिक एक्सिस देखो एक दूसरे कैसे हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक थर्ड पोलराइड कैसे रख दिया जाता है, इन दोनों के ठीक बीच में ऐसे, जो कि ऑप्टिक एक्सिस इसका पैरेलल है इसके P1 की। ऐसे P1 P3 दोनों के ऑप्टिक एक्सिस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो इस तरीके से यहां एक ये P3 रख दिया गया, ये है P3। ओके, ये तो सिचुएशन है। अब मुझे ये बताओ कि यहां से जो लाइट आई P1 से पास हुई, मतलब इस पर इंटेंसिटी लाइट की हो I0, तो यहां लाइट की इंटेंसिटी रहेगी I0/2 इससे पहले से। अब इस पर रोटेशन का इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट पोलराइड से पास जब होगी तो उससे रोटेशन का, P3 से रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अभी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट P3 से जो मिलेगी, लेट I1 विल बी द इंटेंसिटी क्या होगी, देखो यहां से इंटेंसिटी कितनी होगी I0/2, इससे जब होगी वो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब ये हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। वो कब होगी कि जब आप इसका P3 को रोटेट करोगे, किससे, थीटा एंगल से। थीटा एंगल से देखो, जैसे ये P1 का एक्सिस है, आपने क्या किया, P3 को देखना, P3 को रोटेट कर दिया, ये तो किसका है, ये P2 का है। मैंने P3 को रोटेट किया कितने से, थीटा एंगल से। ठीक है, P3 को रोटेट किया थीटा एंगल से, तब ये P3 से जो इमेज ऑफ लाइट है ये है। क्लियर। अब P3 का एंगल P1 से थीटा है, लेकिन P2 और P3 के बीच में जो ऑप्टिक एक्सिस है उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा। कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। तो इससे P2 से जो इमेज आउट लाइट है, जैसे ये I1 लिए यहाँ पे आपने, और यहाँ आप I2 ले लें, तो I2 क्या होगी, I2 इक्वल टू होगी यहां से I1 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहां से क्या हो गया, देखो I2 इक्वल टू I0/2, तो ये है ही, यहां से ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में अगर हम बनाए तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये मैं बना सकता हूं, उसको 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 का डिवाइड, तो ये क्या बन गया। सॉल्यूशन देखते जाना, अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। 4 का वहां करोगे तो ये आंसर हो गया तुम्हारा I2 इक्वल टू 4I0/8, 4I0/8। अब ये 4I0 को यहां लिख लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया साहब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो I2 क्या हो गया, I2 हो गया I0/8 साइन 2 थीटा स्क्वायर, ये I2 आ गया सेकेंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से वैरी करेगा। अब यहां वैल्यू थीटा जो भी जिससे रिपीट किया हो, तो I1 I2 हम बता सकते हैं कि ये I1 है इंटेंसिटी, जो इससे P3 से पास होगी, और P2 से जो इंटेंसिटी मिलेगी वो I2 ये होगी I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर हो गया। तो ये है मेलस लॉ पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपसे सिंपल डिस्कस किए। आपसे सीधे सीधे एंगल्स दिए जाएंगे तो आप बता देंगे मेलस लॉ से, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पोलराइड से जब पास होगी तो इंटेंसिटी ये रहेगी I0/2।
फिर उसके बाद ये cos स्क्वायर थीटा हो जाती है, चाहे इससे लगाओ चाहे किसी से भी लगाओ, फिर तो वही आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकल के आई, दोनों परपेंडिकुलर सिचुएशंस में थी और ये इसको यहां रखा गया इसके पैरेलल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, यहां ये दो वेव फ्रंट गिवन है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, और यहां एक ये प्लेन वेव फ्रंट है ये, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 1 दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ उसका √2 गिवन है। इसमें पूछा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, चार ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पे। तो ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इसकी शेप क्या होगी जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। देखो ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा होगा, अगर हम रफली डायग्राम बनाए, ये प्लेन मिरर, तो इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होनी चाहिए, तो इस तरह की शेप आनी चाहिए। तो पहले तो आप देख लेना, इस तरह की शेप में जो भी आ रहा होगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहां से चेकआउट कर लो, जैसे ये है इस तरीके से आ रहा है, तो ये जाएगा कैसे, ये सबसे पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा और उसके बाद ये, तो जो भी इस तरह का शेप का दिखाई देगा वो क्या होगा, हमारा आंसर है। समझ में आया ना। तो सिंपली जो रिफ्लेक्शन के लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो फॉलो करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको यहां से जो रिफ्लेक्टेड स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये होगा यहां से स्फेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, यहां ये थोड़ा सा आपको यहां मैथमेटिकल सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपको हाइगेन्स के सेकेंडरी यूनिट प्रिंसिपल पर बेस्ड थ्योरी पता है कि हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे हमने प्रूव किया था, तो शायद आपको ये एक थ्योरी से एक डायग्राम आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि हमने जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट प्लॉट किया था कुछ ऐसे था, ये था रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शंस गिवन है तो इस तरह की जो भी शेप होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, और उसमें इसी तरह के सारे ऑप्शन है, शेप सबकी ऐसी है, तो एंगल देखा जाएगा कि एंगल किसका सही है, वो आंसर सही होगा। एंगल कौन सा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से निकाल सकते हो, ये 45 है, तो जो इंसिडेंट रे होगी वो भी नॉर्मल का कितना एंगल बनानी होगी 45, तो 90 माइनस 45 कितना हो गया 45। तो स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई, ऐसे लिखो स्नेल्स लॉ को, n1 into sin i इक्वल टू n2 sin r, सिंपलीफाइड फॉर्मेट है इसका। तो 1 into sin 45 इक्वल टू n2 √2 sin r निकालना है, तो ये √2 इधर आ जाएगा, ये 1/√2 है, और ये √2 इधर से इधर आ गया, ये बन गया sin r, तो r इक्वल टू मिल गया sin इनवर्स 1/2, यहां से √2 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 2, तो r कितना आ गया 30 डिग्री। ये वाला एंगल आया 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना मिल गया आपको 60 डिग्री, राइट। ये 60 है तो ये 90 है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, 90 60 150, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। चेक कर लेना, जिसमें भी ये एंगल आप शो हो रहे होंगे 30 60 या 60 30 और ये शेप होगी, वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने जो सिंपली आपकी थ्योरी थी हाइगेन्स का सेकेंडरी यूनिट प्रिंसिपल पर बेस्ड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था, उसी से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं हम इंटरफियरेंस से। किससे, इंटरफियरेंस से। इंटरफियरेंस से देखें, इंटरफियरेंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द रेशियो ऑफ amplitudes of the light waves, two light waves is given to you, A1 and A2 given है। उसने क्या पूछा है, find out the ratio of the maximum intensity E max over E minimum
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स का जो सुपरपोजिशन होगा उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का भी रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, और मैक्सिमम का मिनिमम के साथ रेशियो एम्पलीट्यूड्स का, और उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा गया है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रेशियो फॉर्मेट में गिवन है आपको, आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम, ये भी पूछा है, और ये ई मैक्स और ई मिनिमम क्या है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मिनिमम एम्पलीट्यूड से रेशियो पूछा है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रेशियो पूछा है। यहाँ A1 और A2 की वैल्यूज आपको गिवन है। लेट्स सी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2। यहाँ पे रेशियो गिवन है आपको 3/2, 3:2, ये रेशियो गिवन है एम्पलीट्यूड्स का 3:2, इसको पूछा है। तो इंटरफेरेंस की थ्योरी में आपको जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है आफ्टर सुपरपोजिशन वो क्या होता है, अगर ई से प्रिंट करें तो ई सी लिख लेते हैं, ई इक्वल टू होता है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा। थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब सेम फेज में दोनों का सुपरपोजिशन हुआ होगा। ई मैक्स कब होगा, कंस्ट्रक्टिव केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब, इट मींस थीटा क्या होगा उसमें 0। तो ई मैक्स क्या होगा वहां से a1 प्लस a2, थीटा 0 रखना, वहां से आ जाएगा a1 प्लस a2। मिनिमम कब होगा, थीटा जब 180 तब a1 माइनस a2 होता है। तो इसको रेशियो में यहां रख लो, ये मिल जाएगा आपको। हेंस ई मैक्स ओवर ई मिनिमम इक्वल टू a1 प्लस a2 ओवर a1 माइनस a2। वहां से रेशियो a1 अपॉन a2 गिवन है, तो a2 कॉमन ले लो, वहां से क्या मिल गया, a1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a1 अपॉन a2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, a1 अपॉन a2 कितना है 3/2, ई मैक्स ओवर ई मिनिमम इक्वल टू कितना 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 माइनस 1। तो क्या आ गया, ई मैक्स ओवर ई मिनिमम 3/5/2 ओवर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ई मैक्स ओवर ई मिनिमम क्या आ गया 5:1। अब इंटेंसिटीज का रेशियो आई मैक्स और आई मिनिमम क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है इंटेंसिटी। तो इट मींस हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई तो इसका होल स्क्वायर और मिनिमम का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट होना ही होना है, बाकी क्या बचेगा देखो, आई मैक्स ओवर आई मिनिमम विल बी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर ओवर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। कॉमन ले लो a2, तो a2 स्क्वायर कॉमन यहां से आया, a2 स्क्वायर बाहर निकल गया, वहां से क्या मिला a1 अपॉन a2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a1 अपॉन a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हुआ, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, आई मैक्स ओवर आई मिनिमम मिल गया, ये यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना है 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स ओवर आई मिनिमम हाउ मच 3 to 5, 5 5 25 ओवर 4 ओवर 3 minus 2 1, तो दैट इज 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, रेशियो आ गया 25:1। ये आ गया मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो। ओके, लेट्स सी द अनदर प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहां फ्रिंज विड्थ पूछिए। क्या पूछा है? फ्रिंज विड्थ। फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ इफ, नोट करते चलेंगे सीधा सीधा पैरामीटर्स को जो गिवन है। सीधा आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ ली ना तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इतने हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। क्या कह रहा है ये? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जो स्लिट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है यहां स्मॉल d इक्वल टू 0.2 mm, wavelength of the light is lambda 8000 angstrom and the distance from the slits to screen is capital D equal to 1 meter. Find out the fringe width. fringe width निकलवाई उसने। दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं। यहां तो क्या पूछा है? फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा। दूसरा क्वेश्चन एक और नोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? इन द यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट lambda 1 equal to 6600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लेने पर एंड 160 फ्रिंजें फॉर्म होती हैं विजुअल रीजन में। जो विजुअल रीजन है वहां पर इतनी वेवलेंथ की लाइट जब इंसिडेंट हो तो हमें 60 फ्रिंज फॉर्म्स दिखाई देती हैं, 60 ब्राइट फ्रिंज दिखाई देती हैं। इफ वी यूज लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ 4400 angstrom, then how many fringes will be formed? How many fringes will be formed in the same region? Same region मतलब समझ रहे हैं आप? उनकी विड्थ वाला रीजन कि वहां पर जितनी उनकी फ्रिंज होंगी, एक फ्रिंज बनी है तो एक की तो पता ही है, तो 60 बनी हुई है तो 60 की फ्रिंज विड्थ लगा दो वहां पे, उसी से निकल के आएगा। इसको निकालने पहले बीटा, तो बीटा दोनों क्वेश्चन सेम से ही है। देखो जरा, अब तो सब मार्कर्स का भी कलर एक जैसा हो गया। हाँ चलो, फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है? डी लैम्डा अपॉन डी। सारी चीज की वैल्यूज रख दो, सब्स्टिट्यूट करो यार, क्या दिक्कत आ रही है? बीटा डी कितना है? 1 मीटर। लैम्डा मीटर में चेंज कर लेना, 8000 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻10 ओवर डी, v.2 mm दैट इज 0.2 10⁻³ मीटर। एडजस्ट करेंगे, पावर -4 होगी, -6 रह गई पावर एडजस्ट हुई, इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो ये 4000 इंटू 10⁻6, तो बीटा इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर और 4 मिलीमीटर। इतनी चौड़ाई आ गई इसकी फ्रिंज की विड्थ, फ्रिंज विड्थ की आ गई। दूसरा, किसी रीजन में 60 फ्रिंजें फॉर्म होती हैं, दिखाई देती है विजुअल रीजन में, जब वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम की लाइट वेव को यूज किया जाता है, वेवलेंथ की लाइट को यूज किया जाता है, तो 60 फ्रिंजें फॉर्म होती है। इट मींस वो विड्थ कितनी होगी? n1 d लैम्डा अपॉन d। क्लियर? तो यहां लैम्डा 1 ले लें क्योंकि ये मैंने यहां पे लिया, ये जो वेवलेंथ दोनों में चेंज हो रही है, लेकिन विड्थ रीजन सेम होगा। उसी रीजन बनानी है आपको। जैसे इस रीजन में अब बात की जाए, एक बार तो हमने इस वेवलेंथ की लाइट को यूज किया तो यहाँ 60 बन गई, अब इतनी को यूज करें तो कितनी बनेगी? तो जो विड्थ है यहाँ तक की डिस्टेंस वो क्या होगी? सेम होगी। और वो किसके बराबर होगी? फ्रिंज विड्थ एक की कितनी होगी? डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो इतनी बनी है तो इतने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, उसके से 60 और 60 के इक्वल हो जाएगी वो डिस्टेंस। तो ये यहाँ से W ये होगा एक बार एक इक्वेशन से, और दूसरी से क्या आ जाएगा? यही W इक्वल टू n2d लैम्डा 2 बाई डी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को यूज कर लो, तो n1 d लैम्डा 1 ओवर d इक्वल टू n2 d लैम्डा 2 ओवर d। d लैम्डा d बाई डी कैंसिल हो गया, n1 लैम्डा 1 आ गया, तो n2 निकल के आ गया n1 लैम्डा 1 और लैम्डा 2। हाँ दिक्कत आ रही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब यहाँ करते हैं सब्स्टिट्यूट, यहाँ देख लेना भाई, n2 इक्वल टू n1 कितना है? 60, लैम्डा 1 6600 एंगस्ट्रॉम दैट इज -10 अपॉन लैम्डा 2 4400 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻10। ये तो कैंसिल हुआ, ये 0 भी कैंसिल हुए, 6 टाइम्स ये 4 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, 15 टाइम्स
तो 15 6 90 फ्रिंजेस फॉर्म होंगी जब आप ये वेवलेंथ की लाइट को यूज करोगे। इफ वी यूज द लाइट वेवलेंथ 4400 एंगस्ट्रॉम देन in the same region 90 fringes will be formed। कितनी फ्रिंजें फॉर्म होंगी? 90 फ्रिंजें फॉर्म होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म आपसे हो जाए, बहुत आसान है क्वेश्चंस का, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा सा मैं चलो लॉजिक बता देता हूं कि जो मिनिमम मैक्सिमम के जो क्वेश्चंस हो कैसे सॉल्व करोगे आप। आपको पता है पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस में पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होती है? ये होती है एन डी लैम्डा अपॉन डी। सिंपली पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज को आप डैश से लिख रहे हो तो 2n - 1 डी लैम्डा बाई डी होती है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने 2n + 1 से भी आपको कराया है, तो यहाँ पे n = 0 से सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ n = क्या है? 1 1 2, यहाँ पे भी n = 1 2 से लेंगे। ये फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, ये वाली, ये ब्राइट फ्रिंज है और ये डार्क फ्रिंजेस है। पोजीशंस नहीं है, ठीक है, पोजीशंस है। फ्रिंज विड्थ तो सेम होती है सबकी, बीटा = d लैम्डा बाई डी। कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, फ्रिंज विड्थ दोनों की सेम आती है, बीटा = बीटा डैश होता है। एक चीज और, अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें, किसकी? डिफ्रैक्शन की बात करें, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है? ये जो ब्राइट यहां बन रहा है वहां इट इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा। किसकी पोजीशन होती है? मिनिमा की पोजीशन है। ये रिप्रेजेंट करता है मिनिमास पोजीशन। इंटरचेंज हो गया, जहां ब्राइट बन रही थी वो मिनिमा और जहां डार्क बन रही हो मैक्सिमा की पोजीशन है। मैक्सिमा की पोजीशन है। अगर आपसे एंगुलर पोजीशन पूछी जाती है तो यहां डी से हटा देंगे, एन लैम्डा अपॉन डी। क्लियर? वहां पर भी वही काम करना है आपको कि अगर एंगुलर पोजीशन पूछी गई है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, फर्स्ट मिनिमा की, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल हो जाता है। बेसिकली आपका लेक्चर की लेंथ अभी तो है टाइम, let's see two more numerical problems. In diffraction pattern by single slit, position of the secondary maxima is this one. If d, capital D diameter, which is the distance from the slit to the screen, and it is the size of diffractor, find out the lambda wavelength, which wavelength of the light is used. So position of maxima, secondary maxima, what would be the position? सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन पूछी है, दी हुई है आपको, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकालेंगे आप? 2n + 1/2 × d लैम्डा बाई डी। ओके, 2n प्लस मैक्सिमा की पोजीशन ऐसे निकाली जाएगी। यहाँ पे n = 1 पुट करोगे तो 2 × 2 = 4 + 1 5/2, n = 1। यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा है तो 3 आ जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए तो n = 1, सेकेंडरी के लिए n = 2, तो n = 2 पुट करो यहाँ, तो y2 डैश = आ गया सेकेंडरी मैक्सिमा 2 × 2 = 4 5/2 d लैम्डा बाई डी, where y2 डैश is given, it is 1.4 mm, so 1.4 × 10⁻³ = 5/2 d, how much? 80 centimeter. Basically it is the distance of the screen from the diffractor. लैम्डा इसने हमसे पूछा है, what is the size of diffractor d? बेसिकली यहाँ a ले लेते हैं, इसको e से प्रिंट करते हैं। it is the size of diffractor 0.8 mm, 0.8 × 10⁻³ तो पॉइंट से ऐसे हटाएंगे, ये 100 - 3 यहाँ चल जाएंगी और ये पॉइंट हट गया, 1 टाइम दैट इज 100। ओके, 100 तो ये 50 हो गया और ये हो जाएगा 250, तो 1.4 × 10⁻³ = 250 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा = आ गया 1.4 × 10⁻³ / 250, एक पावर यहाँ से लगेगा तो -4 हो गया, 25, एक को बढ़ा दो -5 हो गया, एक को बढ़ा दो 6 कर दो 140 हो गया, तो लैम्डा =
कितना चला गया 25 6 जा 150 नहीं जाएगा 125 5 टाइम्स दे लो 15 बच गया और 0.6 -6 मीटर की अगली वेवलेंथ इस वेवलेंथ की लाइट को यूज किया हुआ होगा। ओके, अब देखो इस समय में आएगा क्वेश्चन पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा आपको गिवन थी इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल जो फ्रिंज है उससे यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो पोजीशन हो गई है सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल फ्रिंज से इतनी डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है तो सेकेंडरी पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम n = 2 रखेंगे 5/2 हो जाएगा यहाँ पे d लैम्डा अपॉन a या d लिख लेते हैं साइज ऑफ फैक्टर t लिया तो d और a लिया तो a बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां से तो हमें ये रिजल्ट मिल गया वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्टेन हो गई। मैथमेटिकली आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इसको देखो यहाँ पे इसमें क्या है ये रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है। अगर ये वाला लाइट यूज किया जाए इतनी वेवलेंथ का if the light of the wavelength 6000 angstrom is used then the 2 points which are placed at a distance of 1 mm can be resolved with the help of the telescope से आसानी से देखे जा सकते हैं। if this wavelength of the light is used then what will be the resolving power of the telescope। तो पहले इसके लिए निकाल लो ना, इसके लिए निकालो तो x इक्वल क्या होगा d लैम्डा बाई डी। ओके, अब x1 के लिए निकाल रहे हो आप तो d लैम्डा बाई डी, तो ये d तो हमें पता है ये वाला d ये 1 mm और ये लैम्डा पता है तो x1 निकल के आ गया x1 ये क्या है डायमीटर है किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का टेलीस्कोप के का तो ये d तो एजिटेड रहने दो और d तो एजिटेड हो गया लैम्डा हो गया 6000 10⁻10 ये d अपॉन d 1 mm दैट इज 1 - 3। x2 की बात करेंगे x2 को अगर ले लें अगर ये रिजॉल्व किया जाए इस वेवलेंथ से तो x2 रिजॉल्विंग पावर क्या होगी उस समय रिजॉल्विंग पावर होगी यहां से हमारी d तो वो जो कहते हैं चेंज नहीं होगा 4800 into 10⁻10 अपॉन सेम 110⁻3 into कैपिटल D ये हो गई यहां से इन ये अगर इस केस में रिजॉल्विंग पावर आपको पता है x1 की वैल्यू अगर पता है उसमें दी हुई हो तो हमें x2 निकल सकता है यहां से क्योंकि वहां से क्या मिल जाएगा हमें d मिल जाएगा तो x2 ऑब्टेन हो जाएगा या इसको हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम द डाटा इज गिवन और नॉट। चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू गिवन है हमें। 1 सेकेंड yes and it is the 0.1 m sorry क्वेश्चन रॉन्ग हो गया दोबारा से देखिए इसको ये एजिटेड ठीक है ये गलत लगा दिया रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला गलत लगा दिया। ये क्या होता है रिजॉल्विंग पावर अगर हम यहाँ S1 से पेंट करें तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दी पूछी होती तो निकाल लेते ये गिवन है आपको S1 कितनी रिजॉल्विंग पावर है इस पर रेजिस्टेंस 1.22 रिजॉल्व किए जा रहे हैं 1.22 सॉरी 1 mm पर 1 mm क्या हो गया 1 10⁻³ इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी तो यहाँ से डी मिल सकता है। दूसरे के लिए पूछा था इसने तो S2 इक्वल टू क्या होगा 1.22 ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2 अपॉन डी इनको डिवाइड कर देंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है तो S2 ऑब्टेन हो जाएगा हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें S2 ऑब्टेन हो जाएगा by dividing both of these equations डिवाइड कर लो इक्वेशंस को ये फर्स्ट इक्वेशन है
and equation second. On dividing equation 1 by 2, तो ये क्या आ गया यहाँ से 1 into 10 power minus 3 over S2 equal to 1.22 lambda 1 6000 10 power minus 10 upon D as it रहने दो 1.22 4000 4800 10 power minus 10 upon D. D से D कैंसिल हुआ, पावर कैंसिल हुई, जीरोस कैंसिल हुए, 1.22 कैंसिल हुआ, और तो S2 और ये यहाँ से इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लें, -3 ओवर S2 इक्वल टू 660 ओवर 48, ये आया 5/4, 4 का मल्टीप्लाई बच जाएगा तो 4 into 10 power minus 3 equal to 5S2. So S2 resolving power for this case when the wavelength of light is used will be क्या होगी 4/5 that is 0.8 into 10 power minus 3 मीटर. तो ये 1 mm से कम हो गई, ठीक है ना, डिस्टेंस हमारी ये जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई, वेवलेंथ कम यूज की गई, तो ठीक है. तो इस तरीके से ये आगे रिजॉल्विंग पावर. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं. अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको और दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे. आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी अगर आपने कंसेप्चुअली थ्योरी सही से तैयार की है तो, ठीक है. सारे न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है. इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आप डिफ्रैक्शन पैटर्न, मैक्सिमम पोजीशन क्या होती है, मिनिमम पोजीशन क्या होती है, पावर और रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे बताई थी मैंने, वो सारा अच्छे से अगर थ्योरी आपने लर्न की है तो आपको न्यूमेरिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पहले आप सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को सॉल्व करो, आफ्टर दैट जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स गिवन है आपको उनको सॉल्व करो. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे.